80 सालों से 24 अप्रैल का दिन मनाया जाता है, पूरी श्रद्धा से नमन किया जाता है। लेकिन ये पता नहीं था कि ये भी दिन आएगा कि बीच में दीप प्रज्वलन, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। मंगेशकर परिवार एवं आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपके साथ बैठने आ रहे हैं। क्योंकि ये प्रधानमंत्री केवल देश के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के लोगों के प्रधानमंत्री हैं। देवियों और सज्जनों, मेरी नजर में कम से कम एक मंगेशकर ने संगीत शिक्षा को प्राथमिकता न देकर परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है, निभाते आ रहे हैं। आदिनाथ मंगेशकर पर्दे के पीछे लाइमलाइट से दूर अपनी फर्ज निभाते जाते हैं और वो भी बखूबी। बल्कि उनका सिद्धांत है प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट कि अगर काम सही हुआ तो क्रेडिट आपकी, अगर कोई गलती हुई तो वो गलती मेरी। आदिनाथ मंगेशकर युवावस्था से ही परिपक्व निर्णय लेने के आदी हैं। आज भी आप अपने पिता पंडित हृदयनाथ मंगेशकर की जगह संभाल रहे हैं। देवियों सज्जनों, स्वागत शब्दों के साथ आदिनाथ मंगेशकर। Namaskar. A very warm welcome to one of the greatest leaders this planet has ever seen, our Honorable and most beloved Prime Minister, the truly one and only Gurudev Yugapurush, Shri Narendra Damodar Das Modi. A very warm welcome to His Excellency, the Honorable Governor of the State of Maharashtra, Adarniya Shri Bhagat Singh Ji Koshyari Ji. I'm sure the audience will understand what kind of emotions I'm going through. It is so overwhelming to be in the presence of Gurudev, honestly. So, a very warm welcome to a galaxy of dignitaries that is here. There is an absolute galaxy of dignitaries present here.
there is everybody from various walks of life, and there's such a large galaxy that I will simply say a very warm welcome, sirs, to all of you. All these years, it was my father, Pandit Hridaynath Mangeshkar ji, who would always deliver the welcome address and give a little bit of information about our trust. This year he is unable to do so because he is in the hospital currently. By the grace of God, he will be back home in the next 8 to 10 days. He is stable and doing well. The Master Dinanath Mangeshkar Smriti Pratishthan is a registered public charitable trust, registered in the year 1988 with the Charity Commissioner in Pune. The funds have been collected by none other than Honorable Didi herself, and that is how the trust was born and the trust was formed. One of the activities of this trust is that on the 24th of April every year, the Memorial Day, जिसे हम पुण्य तिथि कहते हैं, is to be celebrated or let's say commemorated or marked with a function. For 79 years, without break, this tradition has carried on. And for 79 years, Didi herself was at the helm of affairs and she conducted everything. And this year marks the 80th anniversary of Master Dinanath Mangeshkar ji. The trust felicitates with Master Dinanath Mangeshkar Awards various legends from various fields. We also have scholarships for students and ailing artists and senior artists who are in the need of medical aid or medical help. Bharat Ratna Lata Didi, the voice of patriotic India, had a very selfless dedication to the nation. She was a philanthropic visionary. She set up the Dinanath Mangeshkar Hospital to provide ethical medical services of the highest quality to patients at an affordable cost without discrimination whatsoever. Whether it be stepping up in the aid of the families of our great martyrs by committing help for them and their families, or to help the BSF Jawans, or even the COVID relief and vaccination activities, amongst many others. Lata Didi personally, with her family and through the Master Dinanath Smriti Pratishthan and the Lata Mangeshkar Medical Foundation, was always in the forefront. Her life was dedicated to her music and her nation. In her memory, the Lata Dinanath Mangeshkar Award is being instituted, and this is its founding year. This is the year of its institutionalization, and every year it will be given to only one individual. This is the founding year of the award, and every year it will be given only to one single individual who has sacrificed his life to make path-breaking, spectacular, and exemplary contributions to the nation and its people. There can't be another name for this. Paramadaraniya Pradhan Mantri Mahoday, Shri Narendra Modi ji leads by example. He is an international statesman who has made India a world leader. The spectacular progress, yes, don't hold back. It's he has made India a world leader. The spectacular progress that is taking place
in every aspect and dimension in our beloved motherland is entirely because of him. One of the greatest leaders our great nation has seen in its glorious history of thousands of years. Shri Narendra Bhai Damodar Das Modi is a most dynamic leader whose charismatic leadership is being talked about, appreciated, adored globally. Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas has been the motto of this selfless, glorious son of Mother India. Sir, on behalf of the entire Mangeshkar family, sir, and the entire Master Dinanath Mangeshkar Smriti Pratishthan, and the entire Lata Mangeshkar Medical Foundation, sir, सर हम लोग धन्य हैं, हम लोग कृतकृत्य हैं कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकारा और आप यहाँ स्वयं पधारे. So this is a moment, I think, which will live with us even probably in our next life. We are so humbled and we so deeply appreciate, sir, your magnanimous gesture, sir, in coming here in person to receive the first ever Lata Dinanath Mangeshkar Puraskar. Yet again, a very warm welcome to every single individual. Everybody is an invitee, so a warm welcome to everybody. And yet again, a very, very grateful thanks to our beloved and honorable Prime Minister, Sir, Shri Narendra Modi ji, our honorable Governor, Sir, Bhagat Singh ji, Koshyari ji, and the entire galaxy of dignitaries of various walks of life that I'm seeing here. So thank you, everybody. Thank you for coming here and showering your love upon the family. Thank you for helping us share the legacy of Lata Didi. And thank you, sir. Thank you so much, sir. देवी और सज्जनों, मैं यहां पहली बार पोडियम पर आया आज, तो मुझे कुछ आभास सा हुआ कि अभी पीछे से महीन सी मीठी सी आवाज आएगी और शरारत के अंदाज में पूछेगी, आपको सॉन्ग लिस्ट मिल गया ना? क्योंकि आज अगर वो होती तो ये मेरा उनके साथ 143वां कार्यक्रम होता. आदिनाथ वर्क्स लाइक क्लॉकवर्क. इन्होंने सब कुछ बता दिया है, मेरा काम थोड़ा कम थोड़ा आसान कर दिया है. एक बात अवश्य कहूं इस अवार्ड के बारे में, इसका नाम, इसका शीर्षक. देखिए, लता मंगेशकर अवार्ड नहीं है, कह सकती थी, यह है लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड. कितना पुनीत नाम है. आप जानते हैं, ये नाम उन्हें बहुत पसंद था. कौन सा नाम? केवल लता नहीं, केवल मंगेशकर नहीं, लेकिन लता दीनानाथ मंगेशकर. बहुत सालों पहले उनकी पहली रेडियो इंटरव्यू श्रृंखला में मैंने एक सवाल पूछा था कि जब आप आई तब तो एक्टर, एक्ट्रेसेस, कलाकार सारे अपने नाम बदल लेते थे, अपनी असली पहचान जरा छिपा लेते थे कुल नाम के पीछे. आप तो मंगेशकर हैं जो चिल्ला चिल्ला के शायद कह रहा है कि मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, और आप हिंदी उर्दू भाषी फिल्म जगत में अपना स्थान बनाने चली हैं. तो कोई आर्टिस्टिक सा नाम क्यों नहीं रख लिया? समझिए, गीतांजलि, कोई कुमारी या कोई बाला. तो उन्होंने वो उनकी अर्थपूर्ण दृष्टि के साथ कुछ रुक के कहा कि नहीं हरीश जी, मुझे ये नाम बहुत अच्छा लगता है, यानी लता या मंगेशकर
नहीं, लता दीनानाथ मंगेशकर जब ये साथ में लिया जाता है। मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ, सच्ची बात है। 1941-42 की बात है। खजांची फिल्म के गाने बड़े हिट हुए थे, तो उनकी एक गायन स्पर्धा उन्होंने की थी जो शहर शहर जाती थी। तो हमारे शहर में आई थी, मैं उसमें भाग लेना चाहती थी। पिताजी ने ना कहा कि तू जीतेगी नहीं तो मंगेशकर नाम का क्या होगा। तो मैं छुप छुपा के गई थी। मुझे ये तो याद नहीं है कि मेरे गाने पर कितनी तालियां पड़ी, हालांकि उनको पहला पुरस्कार मिला था। लेकिन मुझे ये अच्छी तरह याद है, जब बच्चे स्टेज पर उनको बुलाया जाता और पूछा जाता कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मैंने बड़े गर्व से कहा, लता दीनानाथ मंगेशकर। और हरीश जी, जो तालियां पड़ी उसकी गूंज अभी तक मेरे कानों में है। तो और उन्होंने इस नाम के बारे में यह भी कहा कि वो प्रतियोगिता थी खजांची फिल्म के लिए, जिनके म्यूजिक डायरेक्टर थे मास्टर गुलाम हैदर। और तब मैं कहाँ जानती थी कि अभी 10 साल के अंदर वो मेरे जीवन को, मेरे करियर को एक नया मोड़ देने वाले हैं। यूं समझिए, ये खजांची और वो प्रतियोगिता तो मेरे जीवन में एक कुंडली बनकर आ गई। मुझे ये बताया गया है कि मैं आपसे कुछ ऐसी बातें साझा करूं जो कम जानी गई हों, और मुझे सौभाग्य से इसका अवसर मिला है। देखिए, लता मंगेशकर के बारे में सब कोई सब कुछ जानता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सही तरीके से जानना है तो उसके स्वभाव की बारीकियां जाननी पड़ेंगी। और लता जी के स्वभाव में कुछ ऐसी चीजें थीं जो उनके महाव्यक्तित्व के अंचरे के नीचे छुप जाती थीं, दब जाती थीं। आप जानते हैं, एक था गुस्सा। उनकी नाक पर गुस्सा रहता था। बहुत कम लोग ये जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में बहुत कहते हुए सुना जाता है कि ये कोई इसे धार्मिक पुस्तक न समझें, ये तो जीवन जीने की कला की मार्गदर्शिका है। लेकिन कितने लोग उसमें जो गुण दिए गए हैं वो आत्मसात करते हैं? मैंने किए हैं कम से कम 2 श्लोक, एंड दे आर वेरी रेलेवेंट टुडे। उन्होंने कहा, एक श्लोक है, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, कि क्रोध सम्मोहन पैदा करता है और वो विनाश की तरफ ले जाता है। कहा, जब भी मुझे गुस्सा आता मैं चुप होकर उस श्लोक का पठन करती, और उसकी वजह से उन्होंने अपने क्रोध को उपेक्षा में तब्दील कर दिया। लता जी के बारे में कहा जाता था कि लता जी के तुणीर में, तरकश में सबसे तीक्ष्ण शस्त्र अगर कोई था तो वो था उपेक्षा, इग्नोर अ पर्सन। अगर आसपास वाले किसी ने कोई गलती की है तो उसे डर इस बात का नहीं लगता था कि लता जी क्या कहेंगी, डर ये लगता था कि कुछ भी नहीं कहेंगी। और मैंने पूछा, दूसरा श्लोक? कहा, दूसरे
दूसरा श्लोक तो यूं समझिए मेरा जीवन ही है, मेरी कार्यशैली ही है। और आप जानते हैं, बाय द वे, ये मेरी बात हो रही थी उनसे उनके आखिरी कोई 1 महीने में, जब अंतिम बार वो अस्पताल गई, उससे 15 दिन पहले मुझे बुलाया था और कमरे में बैठ के दुनिया भर की चीजों के बारे में बस बतियाती रही। उनको हंसने का और बतियाने का बहुत शौक था। तो कहा, जानते हैं, जिस दूसरे श्लोक की आप बात कर रहे हैं, उनकी वजह से, उस श्लोक की वजह से तो मैं नरेंद्र मोदी जी से मिली। मैं नहीं जानता कि आदरणीय प्रधानमंत्री ये जानते हैं या नहीं। और वो श्लोक है, बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व। और उसका मुख्य भाग है योगः कर्मसु कौशलम। उन्होंने कहा पूरा श्लोक भी नहीं, श्लोक का चतुर्थांश, योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि कुशलता से किया गया कार्य स्वयं योग है। Translated in English, it would mean work done to perfection is itself your greatest reward. उन्होंने कहा कि मैंने पैसों के लिए, ख्याति के लिए कभी काम नहीं किया। और पिछले कुछ अरसे से मैं देख रही हूं, कोई 15-20 सालों से, कि एक व्यक्ति है जो पूरे समर्पण के साथ काम करता है। और समर्पण अपने प्रति नहीं है, वो समर्पण है समाज के प्रति, राज्य के प्रति और उससे शीर्ष देश के प्रति। आपको पता है, जब मोदी जी से किसी ने पूछा था कि आपकी दिनचर्या क्या है, व्हाट इज योर टिपिकल डे, आप सुबह क्या खाते हैं, जिस तरह से अर्जुन ने पूछा था ना, स्थित प्रज्ञ से का भाषा, तो मोदी जी ने जवाब दिया था, सुबह उठ के पहले तो मैं 1-1.5 किलो गालियां खाता हूं। ये तो हंसी की बात हुई। उन्होंने कहा, लता जी ने कहा, इतना विरोध होने के बावजूद वो उस विरोध का जवाब गुस्से में नहीं देते, वो अपना काम करते रहते हैं। और वो काम अपने लिए नहीं होता, सारे देश के लिए होता है। आज का ही दिन ले लीजिए, मैं अचंभित हूं, सुबह 11 बजे मन की बात, उसके बाद जम्मू में पंचायत के साथ मीटिंग्स, कितने सारे निर्णय लिए, स्पीच दी, शाम को यहां। मेरा ऐसा ख्याल है अभी तो रात होने में 6 घंटे उनके लिए बाकी है। उनकी, लता जी की, मुझे 11 मिनट दिए गए हैं, अभी 7:30 हुए हैं। उनकी, लता जी की दूसरी एक खासियत, जिसे कहें स्वभाव की बारीकी, वो थी सेंस ऑफ ह्यूमर, शरारत, खिलंदड़ापन, जिसे कहेंगे किसी भी चीज में से निर्दोष हास्य ढूंढना। आप चाहें तो मैं 2-3 ऐसे ही निर्दोष आपको उदाहरण दे सकता हूं। इसमें मिमिक्री भी शामिल है उस निर्दोष हास्य में।
राजेश रोशन की एक रिकॉर्डिंग हो रही थी बहुत अरसे पहले। मैं किसी कारण के साथ था महबूब स्टूडियो में। तू मुंह न मोड़, तू ये न कर, तू वो न कर, ऐसा कोई 3-4 छोटे बहर की कविता थी। तो रिहर्स करते हुए, गाना उठाते हुए उन्होंने मुझे चुपके से कहा कि ऐसा लगता है एक लड़की 3-4 अपने बॉयफ्रेंड से कुछ कह रही है, तू ये मत कर, तू ये मत कर, तू ये मत कर, गाना खत्म होने के बाद तय करती हूँ। और उसी मस्ती में सीखा गाना, उसी मस्ती में गाया। मैंने कहा लता जी यहाँ लगभग 45-50 म्यूजिशियंस हैं, आपको लाइव गाना है। हाँ तो क्या हुआ। और राजेश रोशन का कमेंट था उसके बाद, उनको पता नहीं था कि ये मजाक चल रहा है, दीदी आज तो आपने बहुत ही अच्छा गाया। वॉशिंगटन डीसी में मैंने पहली बार लता जी के लिए विदेश में मैं शो एंकर कर रहा था। 1980 की बात है, तब भी आतंकवाद ने अपने पैर पसारने शुरू किए थे और देयर वाज अ बॉम्ब स्केयर इन JFK सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स। और एक वो शो था जो अपवाद स्वरूप देर से शुरू हुआ, कोई 25 मिनट देर से, लेकिन एहतियातन एक बड़ा सा श्वान हमारे साथ जहां सारे आर्टिस्ट बैठे थे छोड़ा गया कि भाई ये ध्यान रखेगा, वो कुछ होगा तो ये बताएगा। तो हम लोग सब इंतजार में बैठे थे कि कब पर्दा खुले, शुरू हो। लता जी अपनी पायल ठपकारती हुई वहां बैठी थी और कहा कि एक ख्याल आता है, बाहर तो हड़बंग मचा हुआ है, एक टिकट नहीं मिल रहा, सुना है ब्लैक भी हो रहा है, वो भी अमेरिका में, और ये जनाब यहां पसर के पड़े हैं कलाकारों के बीच में। कहीं इसको हमारे गाने अच्छे लगे तो अपनी भाषा में तारीफ न करे। और मेरे साथ एक बहुत शरारत की थी। इंटरनेशनल फ्लाइट्स में मेरा चेक्ड इन बैगेज बहुत देर से आता था, खो जाता था, और इसकी मुझे बड़ी शर्म होती थी, बड़ी झेंप लगती थी। मैंने जिम्बाब्वे, हरारे जिम्बाब्वे से मुंबई आ रहे थे हम, साउथ अफ्रीका से होते हुए, सबका सामान आया, मेरा नहीं आया। और मुझे काटो तो खून नहीं, कितना बुरा लगता है कि बार बार मेरे ही साथ होता है। बट लता जी डिडंट टेक इट सो सीरियसली, लेकिन फिर भी वो शरारत तो थी ही। तो उनको पता नहीं था मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि उनकी आवाज़ में ऐसा, जैसे मराठी में फेंक कहते हैं, ऐसा प्रक्षेपण है, ऐसा प्रोजेक्शन है कि धीमे से बोलें फिर भी दूर तक उस दिशा में, यानी कि माइक को सीधे टकराए। तो मैंने सुन लिया। उन्होंने अपने भांजे योगेश से कहा कि ऐसा कर, तू हरीश जी से कह कि वहाँ लॉस्ट एंड फाउंड में जाएं और एक गाना गाएं, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, तो मिल जाएगा सामान। ये बातें चलती रहेंगी। उनके स्वभाव की एक गहरी बात सिर्फ बताता चलूं कि वो भली थी, भोली नहीं थी। मदद करने के लिए सदैव तैयार रहती थी। मुझे याद है एक बांसुरी वादक, शब्द तो शायद आज सरकार अलाउ नहीं करती, कुछ हमारे समाज में कुछ निम्न कक्षा में जीने वाला वो लड़का था, लेकिन बहुत अच्छा बांसुरी वादक था। तो यूं समझिए कि उनके लिए लड़ाई शुरू कर दी। म्यूजिशियंस एसोसिएशन में बात की, रिकॉर्डिंग्स में बात की, अपने लिए जहाँ जहाँ होते थे उनको ले जाती थी, और लोग ताना कसते थे कि क्यों ऐसा करना चाहिए, इतने अच्छे अच्छे बड़े हैं। बहरहाल म्यूजिशियन एसोसिएशन की बात है, उन्होंने उसमें भी बड़ी मदद की थी। अगर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने
शुरुआत की अपनी म्यूजिक डायरेक्शन में, तो वो भी उनकी वजह से। अरे 84 साल में उन्होंने एक युवा कंपोजर शमीर टंडन को म्यूजिक डायरेक्टर बनाया कि अगर तुम प्रामाणिकता से काम करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैंने तुम्हारी धुनें सुनी हैं, बहुत अच्छी हैं। लेकिन अन्याय कभी नहीं सहती थी। और वो कब से लेकर जब वो कोल्हापुर में, अभी तो 48-49 का साल भी नहीं आया था जिसने उन्हें शीश तक पहुंचाया। चलिए हम इतनी, लेट्स एंड ऑन अ लाइटर नोट। उनकी 80वीं सालगिरह पर एक गीतकार ने श्री कृष्ण से एक छोटी सी शिकायत की थी कि रात मेरे सपने में आए कृष्ण मुरारी, पांव पकड़कर उनके मैंने पूछा, हे गिरधारी, तुमने कहा था हर युग में आओगे कष्ट मिटाने, इस युग में ना आए तुम क्या भूले वचन पुराने। बोले वचन न भूला, न भूला पीड़ पराई, मैंने अपने बदले अपनी बंसी है भिजवाई। ये बंसी वो बंसी जो 7 सुरों की मीठी धुनें सुनाए, प्यार का रस बरसाए, जो दिल का दर्द मिटाए। मैंने पूछा, भगवन उस बंसी का कोई पता है? मैंने पूछा, भगवन उस बंसी का कोई पता है? हंसकर बोले, वो बंसी तो भारत रत्न लता है। देवी और सज्जनों, जब वो 6 फरवरी के मनहूस दिन, वो जो 4 घंटे हम नज़ारा देख रहे थे उनका प्रभु कुंज से शिवाजी पार्क जाना, तब मेरी कल्पना में कुछ आया। मैंने कहा ये तो यूं धीमे धीमे जा रही हैं, वो तो हम पामर मानव हैं, इसलिए वो तो कब की वहां पहुंच गई होंगी, वहां पहुंची होंगी, अपने मुकेश भैया से मिली होंगी, मदन मोहन जी, मदन भैया मिले होंगे, और तभी उन्होंने कहा होगा कि लेकिन रुको, पहले मैं खेमचंद प्रकाश जी और मास्टर गुलाम हैदर को नमस्कार कराती हूं। फिल्म इंडस्ट्री में तो वो मेरे गुरु हैं, और तभी उनके बाएं कंधे पर किसी का स्नेह भरा हाथ पड़ा होगा। मुड़ के देखा होगा उन्होंने, बाबा थे। शायद कहा होगा बाबा ने, ताता बाबा चल तुला नवी चीजा शिकवतो। इसलिए हम इतना जानते हैं कि वो जहां भी होंगी, शी मस्ट बी इन अ हैप्पी स्पेस, वहां संगीत बरसा रही होंगी। कहते तो हैं कि आत्मा अजर अमर है। हो सकता है परमात्मा में वो आत्मा विलीन होकर मोक्ष पा गई हो, लेकिन हम स्वार्थी नहीं चाहेंगे वो। हम चाहेंगे कि उस आत्मा ने कोई निवास ढूंढ लिया और थोड़ा इंतजार करें, हम जब नया जन्म लें तो फिर से सहकर्मी के रूप में काम करें। देखा लता जी, हम आपको बहुत याद कर रहे हैं, आप भी हमें भूलिए मत। देवियों सज्जनों, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न पिता की बहुमुखी प्रतिभा संपन्न पुत्री उषा मंगेशकर, विविध भाषाओं की फिल्मों में अग्रणी गायिका, संवेदनशील चित्रकार और सबसे ऊपर परिवार की जिम्मेदार सदस्य।
अब सबसे वरिष्ठ मंगेशकर। उषा जी से अनुरोध है, अपना मनोगत कहें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और यहाँ उपस्थित अतिथियों का स्वागत करती हूँ। ये पहला भाषण देने के लिए मुझे कहा और मैं बहुत डर गई। मैं एक छोटी सी गायिका हूँ, मैं वक्ता नहीं हूँ। गलती हुई तो आप मुझे संभाल लीजिएगा। लता दीदी के नाम का ये पुरस्कार, प्रथम पुरस्कार आपने स्वीकार किया है। ये परिवार के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत खुशी और गौरव की बात है। आज मेरे पिताजी की 80वीं पुण्यतिथि है और हाल ही में दीदी के फिल्म जगत में गाते हुए 80 साल पूरे हुए हैं। 1942 में पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हुआ। हमारे पिता गए और 13 साल की दीदी छोटे बाबा बनकर खड़ी हुई और सारे परिवार का बोझ अपने कंधे पे लिया। वो फिल्मों में बाल कलाकार के नाम से काम करने लगी। कुछ सालों बाद उसने पार्श्व गायन शुरू किया, फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 14 साल की दीदी पिताजी के पुण्यतिथि मनाने लगी। कई दिग्गज कलाकार जैसे पंडित रविशंकर जी, खां साहब बड़े गुलाम अली खां साहब आमिर खां साहब, पंडित कुमार गंधर्व जी, ऐसे बहुत सारे कलाकारों ने पिताजी के पुण्यतिथि पर अपने अपूर्व कला का प्रदर्शन किया। ये सिलसिला आज तक चल रहा है। हमेशा दीदी कलाकारों को पुरस्कार देती थी, उनका सम्मान करती थी, पर आज वो साकार रूप में यहाँ नहीं है। पर हम ये मानते हैं कि दीदी हमारे साथ उपस्थित है और ये समारोह देख रही है। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि इतने व्यस्त होने के बावजूद दीदी के प्रति प्रेम और स्नेह के लिए आप मुंबई आए और ये पुरस्कार स्वीकार करने के लिए सम्मति दी। हम सब हृदय से आपके आभारी हैं, बहुत बहुत आभारी हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। And now, the award. I'm privileged to
read the citation. श्री मंगेश मास्टर दीनानाथ स्मृति प्रतिष्ठान 80वां पुण्यतिथि दिन। आज चैत्र कृष्ण नवमी शुभकृत नाम संवत्सर शके 1944 रविवार दिनांक 24 अप्रैल 2022 के मंगल दिन सुश्री लता दीनानाथ मंगेशकर सर्वप्रथम पुरस्कार भारत के विश्वमान्य प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को प्रदान करते हुए हम परमानंद की अनुभूति कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, भारतीय संस्कृति की महिमा और गरिमा असीम है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ यह भारत एक अद्भुत राष्ट्र है। आज केवल भारत की ही नहीं परंतु विश्व की जनता आपको इस महान राष्ट्र के राष्ट्र पुरुष के रूप में देख रही है, अनुभव कर रही है। बचपन से ही आपका व्यक्तित्व बहुआयामी और प्रभावशाली था। पढ़ाई में आप कुशाग्र बुद्धि छात्र के रूप में सुपरिचित थे ही, किंतु अन्य क्षेत्रों में भी आप विजयी रूप में उभरते थे। वैराग्य और राष्ट्रभक्ति के अलंकारों को धारण करते हुए आपका व्यक्तित्व उभर रहा था। अनेक राष्ट्रीय विपत्तियों के समय आप सेवा कार्य में पूर्ण रूप से जुट गए। क्रिया सिद्धि ही सत्वे भवति महंताम नोपकरणे, ये वचन आपका मूल मंत्र है। माता पिता के उत्कृष्ट संस्कार, अनुपम राष्ट्रभक्ति और वैराग्य अधिष्ठित निष्काम कर्म योग, इनके समन्वय से आपका कार्यक्षेत्र देखते ही देखते विशाल हुआ। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा उद्घोषित दैवी संपत्ति के सद्गुणों को आपने न केवल धारण किया किंतु कठोर अखंड परिश्रम से उनका चरमोत्कर्ष करके सदाचरण में मूर्तिमान कर दिखाया। आपके भारत के प्रधानमंत्री होने की अनिवार्यता नियति ने कालचक्र पर पहले ही अंकित की थी। सबका साथ सबका विकास ध्येय के सहारे आपने भारत को नवचेतना का रूप दिया है। अब ये जन आंदोलन जनशक्ति बन गई है। आपने जनशक्ति, जल शक्ति, ज्ञान शक्ति, ऊर्जा शक्ति, शिक्षा शक्ति और सुरक्षा शक्ति के संगम को स्वयं शिस्त और कठोर अनुशासन सहित आत्मबल के शाश्वत अधिष्ठान पर सुप्रतिष्ठित कर दिया है। आज आप भारत ही नहीं अपितु विश्व नेता के रूप में उभरे हैं। आपके असीम कर्तृत्व को विश्व के अनेकानेक देश साश्चर्य वंदन कर रहे हैं। आप ही के कारण भारत का वैश्विक सम्मान गर्व से उन्नत हुआ है। विश्व के कई सर्वोच्च पुरस्कारों से आप सम्मानित हुए हैं। भारत रत्न सुश्री लता दीदी मंगेशकर और आपका नाता भाई बहन जैसा सत्य रूप एवं शब्दों से परे था। असामान्य एवं लोकोत्तर महामानव होने के नाते आप दोनों ने पूरे विश्व को गौरवान्वित किया है। लोक कल्याण आपका ध्यास है, भारत गौरव आपका श्वास है, निष्काम कर्मयोग आपका प्रयास है और कृणवंतो विश्वमार्यम आपका विश्वास है। आज चैत्र कृष्ण नवमी शुभकृत नाम संवत्सर शके 1944 रविवार दिनांक 24 अप्रैल 2022 के मंगल दिन मास्टर दीनानाथ स्मृति प्रतिष्ठान द्वारा सुश्री लता दीनानाथ मंगेशकर सर्वप्रथम पुरस्कार सम्मान पत्र, सम्मान चिन्ह, महावस्त्र के साथ आपको प्रदान करते हुए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर प्रतिष्ठान धन्यता और कृतार्थ का संपूर्ण अनुभव कर रहा है। इति शम पंडित हृदयनाथ मंगेशकर, अध्यक्ष।
आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि आप ये पुरस्कार ग्रहण करने मंच पर पधारें। साथ ही मंगेशकर कुटुंब के सदस्य मीनाताई खड़ीकर, श्रीमती आशा भोसले और आदिनाथ मंगेशकर। देवियों और सज्जनों, आपने शायद नोट किया होगा कि शुरुआत की मंच की प्रारंभिक औपचारिकता के बाद प्रधानमंत्री जी ने जोर देकर कहा था कि मैं नीचे बैठूंगा, मैं प्रेक्षकों के साथ बैठूंगा, क्योंकि मुझे पुरस्कार स्वीकार करना है जन सामान्य के रूप में। He didn't want to receive the award from the exalted perch of a PM, but only as a common citizen. इसलिए इस असाधारण अलंकरण लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए मैं अनुरोध करता हूं सामान्य भारतीय नागरिक श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वे ये पुरस्कार स्वीकारें। आप ये भी शायद जानते ही होंगे कि औपचारिक अभिवादन के अलावा हमारे प्रधानमंत्री कोई पुरस्कार स्वीकार नहीं करते, लेकिन सारे देश की दीदी भारत रत्न लता मंगेशकर के लिए उन्होंने ये अपवाद स्वीकारा है। अगर यहां बैठे कोई फिल्मकार फिल्म बनाना चाहें तो शीर्षक हो सकता है फिर से भाई हो तो ऐसा। देवियों और सज्जनों, ऐसे जटिल कार्यक्रमों की तैयारियां बड़े नियोजित ढंग से की जाती हैं। इवेंट मैनेजमेंट के सिद्धांतों के अनुसार मिनट टू मिनट सूची तैयार की जाती है। किसे कब आना है, कितने मिनट तक बोलना है। लेकिन मेरा यह विश्वास है कि जहां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों, उसमें जहां तक उनका सवाल है, इस मिनट टू मिनट को बिल्कुल खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि देश ये चाहता है कि मोदी जी बोलते रहें, हम सुनते रहें। और वो इसलिए कि जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो वो करते हैं वो देश के हित में होता है। देवियों और सज्जनों, भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी, श्री सरस्वती नमः।
वाणी परंपरा के पुनीत आयोजन में हमारे साथ उपस्थित महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, महाराष्ट्र विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता श्री देवेंद्र फडणवीस जी, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री श्री सुभाष देसाई जी, आदरणीय उषा जी, आशा जी, आदिनाथ मंगेशकर जी, मास्टर दीनानाथ स्मृति प्रतिष्ठान के सभी सदस्यगण, संगीत और कला जगत के सभी विशिष्ट साथियों, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, इस महत्वपूर्ण आयोजन में आदरणीय हृदयनाथ मंगेशकर जी को भी आना था, लेकिन जैसे अभी आदिनाथ जी ने बताया, तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। साथियों, मैं अपने आप को बहुत उपयुक्त यहाँ नहीं अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि संगीत जैसे गहन विषय का जानकार तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन सांस्कृतिक बोध से मैं ये महसूस करता हूँ कि संगीत एक साधना भी है और भावना भी है। जो अव्यक्त को व्यक्त कर दे वो शब्द है, जो व्यक्त में ऊर्जा का, चेतना का संचार कर दे वो नाद है, और जो चेतन में भाव और भावना भर दे उसे सृष्टि और संवेदना की पराकाष्ठा तक पहुंचा दे वो संगीत है। आप निस्पृह बैठे हो, लेकिन संगीत का एक स्वर आपकी आंखों से आंसू की धारा बहा देता है, ये सामर्थ्य होता है। लेकिन संगीत का स्वर आपको वैराग्य का बोध करा सकता है। संगीत से आप में विरस भरता है। संगीत मातृत्व और ममता की अनुभूति करवा सकता है। संगीत आपको राष्ट्रभक्ति और कर्तव्य बोध के शिखर पर पहुंचा सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमने संगीत की इस सामर्थ्य को, इस शक्ति को लता दीदी के रूप में साक्षात देखा है। हमें अपनी आंखों से उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है, और मंगेशकर परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इस यज्ञ में अपनी आहुति देता रहा है। और मेरे के लिए तो ये अनुभव और भी कहीं बढ़कर रहा है। अभी कुछ सुर्खियां हरीश जी ने बता दी, लेकिन मैं सोच रहा था कि दीदी से मेरा नाता कब से कितना पुराना। तो दूर जाते जाते याद आ रहा था कि शायद 4 साढ़े 4 दशक हुए होंगे। सुधीर फड़के जी ने मुझे परिचय करवाया था।
और तब से लेकर के आज तक इस परिवार के साथ अपार स्नेह, अनगिनत घटनाएं मेरे जीवन का हिस्सा बन गई। मेरे लिए लता दीदी सूर साम्राज्य के साथ साथ, और जिसको कहते हुए मुझे गर्व अनुभव होता है, वो मेरी बड़ी बहन थी। पीढ़ियों को प्रेम और भावना का उपहार देने वाली लता दीदी, उन्होंने मुझे हमेशा उनकी तरफ से एक बड़ी बहन जैसा अपार प्रेम मिला है। मैं समझता हूं इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या हो सकता है। शायद बहुत दशकों के बाद ये पहला राखी का त्योहार जब आएगा, दीदी नहीं होगी। सामान्य तौर पर किसी सम्मान समारोह में जाने का, और जब अभी हरीश जी भी बता रहे थे कोई सम्मान ग्रहण करना, मैं थोड़ा उन विषय में दूर ही रहा हूं, मैं अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता हूं। लेकिन पुरस्कार जब लता दीदी जैसी बड़ी बहन के नाम से हो, तो ये मेरे लिए उनके अपनत्व और मंगेशकर परिवार का मुझ पर जो हक है, उसके कारण मेरा यहां आना एक प्रकार से मेरा दायित्व बन जाता है। और ये उस प्यार का प्रतीक है। और जब आदिनाथ जी का संदेश आया, मेरे क्या कार्यक्रम है, मैं कितना बिजी हूं, कुछ पूछा नहीं। मैंने कहा भैया पहले हाँ कर दो। मना करना मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है जी। मैं इस पुरस्कार को सभी देशवासियों के लिए समर्पित करता हूं। जिस तरह लता दीदी जन जन की थी, उसी तरह उनके नाम से मुझे दिया गया है पुरस्कार भी जन जन का है। लता दीदी से अक्सर मेरी बातचीत होती रहती थी। वो खुद से भी अपने संदेश और आशीर्वाद भेजती रहती थी। उनकी एक बात शायद हम सबको काम आ सकती है, जिसे मैं भूल नहीं सकता हूं। मैं उनको बहुत आदर करता था, लेकिन वो क्या कहती थी? वो हमेशा कहती थी, मनुष्य अपनी उम्र से नहीं, अपने कार्य से बड़ा होता है। जो देश के लिए जितना करे, वो उतना ही बड़ा है। सफलता के शिखर पर ऐसी सोच से व्यक्ति की महानता, उसका हमें एहसास होता है। लता दीदी उम्र से भी बड़ी थी और कर्म से भी बड़ी थी। हम सभी ने जितना समय लता दीदी के साथ गुजारा है, हम सब जानते हैं कि वो सरलता की प्रतिमूर्ति थी। लता दीदी ने संगीत में वो स्थान हासिल किया कि लोग उन्हें मां सरस्वती का प्रतिरूप मानते थे। उनकी आवाज ने करीब 80 सालों तक संगीत जगत पर अपनी छाप छोड़ी थी। ग्रामोफोन से शुरू करें तो ग्रामोफोन से कैसेट, फिर सीडी, फिर डीवीडी, फिर पेन ड्राइव, ऑनलाइन म्यूजिक और एप्स तक
संगीत और दुनिया की कितनी बड़ी यात्रा लता जी के साथ साथ तय हुई है। सिनेमा की 4-5 पीढ़ियों को उन्होंने अपनी आवाज दी। भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान उन्हें देश ने दिया और देश गौरवान्वित हुआ। पूरा विश्व उन्हें सुर सम्राज्ञी मानता था, लेकिन वो खुद को सुरों की साम्राज्ञी नहीं बल्कि साधिका मानती थी। और ये हमने कितने ही लोगों से सुना है कि वो जब भी किसी गाने की रिकॉर्डिंग के लिए जाती थी तो चप्पलें बाहर उतार देती थी। संगीत की साधना और ईश्वर की साधना उनके लिए एक ही था। साथियों, आदि शंकर के अद्वैत के सिद्धांत को हम लोग सुनने समझने की कोशिश करें तो कभी कभी उलझन में भी पड़ जाते हैं। लेकिन मैं जब आदि शंकर के अद्वैत के सिद्धांत की तरफ सोचने की कोशिश करता हूं तो अगर उसको सरल शब्दों में मुझे कहना है, उस अद्वैत के सिद्धांत को, ईश्वर का उच्चारण भी स्वर के बिना अधूरा है। ईश्वर में स्वर समाहित है। जहां स्वर है वहीं पूर्णता है। संगीत हमारे हृदय पर, हमारे अंतर्मन पर असर डालता है। अगर उसका उद्गम लता जी जैसा पवित्र हो तो वो पवित्रता और भाव भी उस संगीत में घुल जाते हैं। उनके व्यक्तित्व का यह हिस्सा हम सब के लिए और खासकर युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। साथियों, लता जी की सशरीर यात्रा एक ऐसे समय में पूरी हुई जब हमारा देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने आजादी के पहले से भारत को आवाज दी और इस 75 सालों की देश की यात्रा उनके सुरों से जुड़ी रही। इस पुरस्कार से लता जी के पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी का नाम भी जुड़ा है। मंगेशकर परिवार का देश के लिए जो योगदान रहा है, उसके लिए हम सभी देशवासी उनके ऋणी हैं। संगीत के साथ साथ राष्ट्रभक्ति की जो चेतना लता दीदी के भीतर थी, उसका स्रोत उनके पिताजी ही थे। आजादी की लड़ाई के दौरान शिमला में ब्रिटिश वायसराय के कार्यक्रम में दीनानाथ जी ने वीर सावरकर का लिखा गीत गाया था। ब्रिटिश वायसराय के सामने ये दीनानाथ जी ही कर सकते हैं और उस युग में कर सकते हैं। और उसकी थीम पर प्रदर्शन भी किया था। और वीर सावरकर जी ने यह गीत अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देते हुए लिखा था। ये साहस, ये देशभक्ति दीनानाथ जी ने अपने परिवार को विरासत में दी थी। लता जी ने संभवतः कहीं एक बार बताया था कि पहले वो समाज सेवा के ही क्षेत्र में जाना चाहती थी। लता जी ने संगीत को अपनी आराधना बनाया, लेकिन राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र सेवा उनके गीतों के जरिए भी प्रेरणा पाती गई। छत्रपति शिवाजी महाराज पर वीर सावरकर जी का लिखा गीत
हिंदू नरसिम्हा हो या समर्थ गुरु रामदास जी के पद हो, लता जी ने शिव कल्याण राजा की रिकॉर्डिंग के जरिए उन्हें अमर कर दिया। आए मेरे वतन के लोगों और जय हिंद की सेना, ये वो भाव पंक्तियां हैं जो देश के जन जन की जुबान पर अमर कर दी। उनके जीवन से जुड़े ऐसे कितने ही पक्ष हैं। लता दीदी और उनके परिवार के योगदान को भी अमृत महोत्सव में हम जन जन तक लेकर जाएं, ये हमारा कर्तव्य है। साथियों, आज देश एक भारत श्रेष्ठ भारत के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। लता जी एक भारत श्रेष्ठ भारत की मधुर प्रस्तुति की तरह थी। आप देखिए, उन्होंने देश की 30 से ज्यादा भाषाओं में हजारों गीत गाए। हिंदी हो, मराठी हो, संस्कृत हो या दूसरी भारतीय भाषाएं, लता जी का स्वर वैसा ही हर भाषा में घुला हुआ है। वो हर राज्य, हर क्षेत्र में लोगों के मन में समाई हुई है। भारतीयता के साथ संगीत कैसे अमर हो सकता है, ये उन्होंने जी करके दिखाया है। उन्होंने भगवत गीता का भी सस्वर पाठ किया और तुलसी, मीरा, संत ज्ञानेश्वर और नरसिंह मेहता के गीतों को भी समाज के मन मस्तिष्क में घोला। रामचरितमानस की चौपाइयां से लेकर बापू के प्रिय भजन, वैष्णव भजन तो तेने रे कहिए, तब सब कुछ लता जी की आवाज से पुनर्जीवित हो गए। उन्होंने तिरुपति देवस्थानम के लिए गीतों और मंत्रों का एक सेट रिकॉर्ड किया था, जो आज भी हर सुबह वहां बजता है। यानी संस्कृति से लेकर के आस्था तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक लता जी के सुरों के पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। दुनिया में भी वो हमारे भारत की सांस्कृतिक राजदूत थी। वैसा ही उनका व्यक्तिगत जीवन भी था। पुणे में उन्होंने अपनी कमाई और मित्रों के सहयोग से मास्टर दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल बनवाया, जो आज भी गरीबों की सेवा कर रहा है। और देश में शायद बहुत कम लोगों तक ये चर्चा पहुंची होगी, कोरोना कालखंड में देश की जो इन्हीं चुनी अस्पतालें जिन्होंने सर्वाधिक गरीबों के लिए काम किया, उसमें पुणे की मंगेशकर अस्पताल का नाम है। साथियों, आज आजादी के अमृत महोत्सव में देश अपने अतीत को याद कर रहा है और देश भविष्य के लिए नए संकल्प ले रहा है। हम दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है। आज भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। विकास की ये यात्रा हमारे संकल्पों का हिस्सा है, लेकिन विकास को लेकर भारत की मौलिक दृष्टि हमेशा अलग रही है। हमारे लिए विकास का अर्थ है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबके साथ और सबके लिए विकास के इस भाव में वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी शामिल है। पूरे विश्व का विकास, पूरी मानवता का कल्याण, ये केवल भौतिक सामर्थ्य से हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए जरूरी होते हैं मानवीय मूल्य, इसके लिए जरूरी होती है आध्यात्मिक चेतना। इसलिए आज भारत दुनिया को योग और आयुर्वेद से लेकर
पर्यावरण रक्षा जैसे विषयों पर दिशा दे रहा है। मैं मानता हूं भारत के इस योगदान का एक अहम हिस्सा हमारा भारतीय संगीत भी है। ये जिम्मेदारी आपके हाथों में है। हम अपनी इस विरासत को उन्हीं मूल्यों के साथ जीवंत रखें और आगे बढ़ाएं और विश्व शांति का एक माध्यम बनाएं। ये हम सब की जिम्मेदारी है। मुझे पूरा विश्वास है संगीत जगत से जुड़े आप सभी लोग इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और एक नए भारत को दिशा देंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मंगेशकर परिवार का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपने दीदी के नाम से इस प्रथम पुरस्कार के लिए मुझे चुना। लेकिन हरीश जी जब सम्मान पत्र पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि मुझे इसे कई बार पढ़ना पड़ेगा और पढ़ करके मुझे नोट बनानी पड़ेगी कि अभी मुझे इसमें से कितना कितना पाना बाकी है, अभी भी मेरे में कितनी कितनी कमियां हैं, उसको पूरा मैं कैसे करूं। दीदी के आशीर्वाद से और मंगेशकर परिवार के प्यार से मुझ में जो कमियां हैं उन कमियों को आज मुझे सम्मान पत्र के द्वारा प्रस्तुत किया है। मैं उन कमियों को पूरा करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।